given by Gregor Mendel. So first important point in this chapter is like begets like. So how can we explain like begets like? Every organism produces an organism like its own style. Means dog will produce dog, human being will produce human being, pea plant will produce a plant like itself, seeds of sunflower will produce sunflower. It means that like begets like means every species produces an organism just like its overall morphology and physiology. Genetically as well as functionally they are similar. So like begets like is the terminology in biology which says that every species produces an organism as it is. Okay, this is explanation. What is the purpose of this? It is the continuation of species or continuation of life. So continuity of life or perpetuation of species is the main purpose behind this, and the process for this is sexual or asexual reproduction. Okay, now second important point, genetics, heredity and variation. Genetics is the branch of biology which deals with the study of heredity and variation. Heredity means similar characters which are transferred from parents to their offsprings, and variation means the dissimilarities between parents and their offsprings as well as in between offsprings of the same parent. Variations. First of all, how can we explain genetics? Genetics is the branch of biology which deals with the study of heredity and variation. Hereditary character are the characters which are transferred from parents to their progeny, means offsprings. Variations are the dissimilarities between parents and their offspring as well as offsprings of the same parent. The term genetics was coined by scientist William Bateson. Term genetics was coined by William Bateson. So clear? कळतंय का? आता वेरिएशन सगळ्यांमध्ये असतात, सब में वेरिएशंस होते हैं, पेरेंट्स में, उनके ऑफस्प्रिंग में और एक ही पेरेंट के सेम ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन दिखाई देते हैं. इसको एक्सेप्शन कौन है? आइडेंटिकल ट्विंस, जो एक ही जाइगोट से बने हुए हैं. सो मोनोजाइगोटिक ट्विंस इज द एक्सेप्शन टू वेरिएशन. उनमें वेरिएशन दिखाई नहीं देते, क्योंकि वेरिएशन हमने क्या कहा? These are the visible variations, are the visible differences observed between parents and their offspring as well as offsprings of the same parent. क्लियर हो गया क्या? अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रीगर मेंडल, ये ग्रीगर मेंडल ने क्या किया था? He performed experiment on plant hybridization. Very important point. John Gregor Mendel performed experiments on plant hybridization. हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ग्रीगर मेंडल ने परफॉर्म किए थे. उसके लिए उसने जो प्लांट सिलेक्ट की थी दैट वाज पी प्लांट. पी प्लांट का साइंटिफिक नाम पाइसम सटाइवम और सैटिवम. साइंटिफिकली व्हेन वी राइट scientific name of a plant, initial one first word is genus, that starts with capital letter. Second word is species, that starts with small letter. बराबर है क्या? Whenever they are written they are underlined, and whenever they are printed in italics. बराबर है क्या? और ये सारे ग्रीक वर्ड होते हैं क्या? बराबर है ना? और ये कौन सी सिस्टम है मैडम लिखने की? साइंटिफिक, बराबर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो किसने दी हुई है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय Carolus Linnaeus. बराबर है कि नहीं? Linnaeus इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. बराबर है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी. उसी तरह से ग्रीगर मेंडल इज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. बात समझ रहे हैं?
सो ग्रीगर मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, एनसीईआरटी में इसका पीरियड दिया हुआ है 1856 से लेके 1863 तक मेनली, ये उसका पीरियड दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट का। हो सकता है एग्जाम में आपको ये ड्यूरेशन पूछा जाए, अभी तक तो पूछा गया नहीं है, पर एनसीईआरटी के बीच में से कुछ भी आ सकता है, इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि ग्रीगर मेंडल परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, उनका जो ड्यूरेशन है एक्सपेरिमेंट का, ये उसके लाइफ का ड्यूरेशन नहीं है, एक्सपेरिमेंट का ड्यूरेशन है, ये ध्यान में रखना है। 1856 टू 1863 बोर्ड की किताबों में और काफी स्टेट बोर्ड की किताबों में पूरे ग्रीगर मेंडल पे उसका वो कहाँ जन्मा हुआ था, वो कहाँ पे उसने क्या काम किया, कौन सी डिग्री ली, एवरीथिंग इज गिवन। बट इन एनसीईआरटी ओनली व्हाट इज गिवन, ग्रीगर मेंडल ने प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पे एक्सपेरिमेंट किए और ये उसका ड्यूरेशन है, किस पे एक्सपेरिमेंट किए, क्यों किए, इतना ही हमें दिया हुआ है। बात समझ गए क्या, क्लियर हुआ क्या? सो फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रीगर मेंडल इज supposed to be father of genetics, more appropriate father of modern genetics। father of genetics भी अगर पूछे तो नाम यही है, father of genetics, और ज्यादा appropriate क्या है, father of modern genetics, father of modern genetics। clear हो गया क्या? so now we are going to discuss the chapter in detail। First of all, why Mendel selected pea plant for his hybridization experiment? What are the reasons behind success of that experiment? क्योंकि जिस वक्त मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट किए हुए थे, उस वक्त साइंटिफिकली जो अवेलेबिलिटी थी रिसोर्सेस की, वो कुछ भी नहीं था। सेल्यूलर बायोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ नहीं था, डीएनए के बारे में कुछ मालूमात नहीं थी, जीन्स के बारे में कुछ मालूमात नहीं थी। उसके बाद भी मेंडल ने इन एक्सपेरिमेंट्स को सक्सेसफुल कैसे बनाया, ये एक्सपेरिमेंट क्यों सक्सेसफुल हुए, तो इसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन लेना है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सक्सेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, रीजन बिहाइंड सक्सेस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, और उसके पहले उसने क्या सोचा था कि व्हाई लाइक बिगेट्स लाइक, लाइक बिगेट्स लाइक हो रहे, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 8000 बीसी में, 8000 BC में इट वाज सपोज दैट कि जो जेनेटिकल कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ, दैट इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। बट नाउअडेज इट इज प्रूव्ड दैट इट इज ड्यू टू द डीएनए, जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन। और मेंडल के वक्त क्या था, दैट वाज जीन्स पता नहीं था, डीएनए पता नहीं था, तो ही टर्म्ड दैट ट्रांसफरिंग फैक्टर एज ए फैक्टर ओनली। फैक्टर ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ। बात समझ रहे हैं क्या? तो अब व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, इनमें हमें टेक्निकल पॉइंट्स क्या ध्यान में रखने। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, पी प्लांट इज एन्युअल प्लांट। एन्युअल प्लांट का मतलब है साल भर में हम हर समय में कभी भी उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं खेतों में। सो पी प्लांट इज एन्युअल प्लांट एंड इजी टू कल्टीवेट, उसका प्रोडक्शन इजी हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पी प्लांट का लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट है, 3 से 4 महीने, इसलिए एक साल में हम उसको काफी टाइम रीजनरेट कर सकते हैं। काफी रीजनरेट बोलने से अच्छा, उसका काफी रिप्रोडक्शन प्रोसेस हम लाइफ साइकिल में देख सकते हैं। 3 या 4 महीने की उसकी जो साइकिल है, लाइफ साइकिल, इसकी वजह से साल भर में हम उसके 3 से 4 जनरेशन तो आराम से स्टडी कर सकते हैं। सो ये भी उसका एक रीजन है सिलेक्शन का। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पी प्लांट नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, बिकॉज पी प्लांट जो है वो पैपिलियोनेशी फैमिली से आती है, पैपिलियोनेशियस करोला, और उसमें क्या है कि उसका जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है, जिसमें एंड्रोशियम भी है, गाइनोशियम भी है। और आपको याद होगा मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में हमने देखा है कि ये जो पैपिलियोनेसी फैमिली है, उसका जो ये एंथर है या उसका जो एंड्रोशियम है, स्टेमन पर्टिकुलरली, उसमें डायएडल्फस स्टेमन है। डायएडल्फस का मतलब है 2 स्टेमिनल ट्यूब बनेगी, और एक स्टेमिनल ट्यूब में 9 और दूसरा एक सिंगल 9 + 1 10, इस तरह से। तो सेल्फ पॉलिनेशन इजीली हो जाता है। व्हाट इज द फायदा ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन? प्योर लाइन्स ऑब्टेन हो जाएंगे। व्हाट इज बेनिफिट ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन? कि इजीली प्योर लाइन्स, प्योर लाइन्स का मतलब है कि हमें
कैरेक्टर्स में प्यूरिटी मिलेगी, कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो हमें जो कैरेक्टर स्टडी करने हैं एज इट इज, हम काफी जनरेशन तक उस कैरेक्टर को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो सेल्फ पॉलिनेशन का मेन बेनिफिट क्या है? अगर सेल्फ पॉलिनेशन वो इजीली करवा रहा है तो उसकी प्यूरिटी के चांसेस है। प्यूरिटी का मतलब है जो जनरेशन मिलेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? प्योर लाइन्स। प्योर लाइन्स यानी क्या कि जो प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है उसके 5-6 जनरेशन के बाद भी हमें ऐसे प्लांट मिलेंगे जिनमें कोई नया कैरेक्टर दिखाई नहीं देगा, वही कैरेक्टर हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं प्योर लाइन्स। बात समझ में आई? सो इट इज बाइसेक्सुअल प्लांट, बाइसेक्सुअल है इसलिए इजीली सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। पर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि बाइसेक्सुअल होने के बाद भी क्या सेल्फ पॉलिनेशन इजीली हो सकता है क्या? कौन बताएगा इसका जवाब? बाइसेक्सुअल प्लांट है तो हर बाइसेक्सुअल प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन इजीली हो जाता है क्या? यस। कुछ प्लांट में जो एंड्रोशियम और वैक्सीन पोजीशन है वो चेंज रहती है, कुछ प्लांट में। वेरी गुड। कुछ प्लांट में एक समय में जवानी नहीं आती। वेरी गुड। मैच्योरिटी टाइम अलग अलग हो सकता है। कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ सच प्लांट्स वेयर मैच्योरिटी इज डिफरेंट, पोजीशन ऑफ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इज डिफरेंट? एनीबडी कैन गिव मी एग्जांपल? ऑलरेडी इट इज स्टडीड इन एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी, वो हो चुका है। सेक्सुअल प्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन के वक्त भी हमने देखा है ना? कौन बताएगा? यस। क्या काय का एग्जांपल है वो? आई एम नॉट आस्किंग बाइसेक्सुअल एग्जांपल, आई एम आस्किंग के बैरियर कहां पे है? हमने देखा है कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, हाउ टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, वो देखा है ना हमने। उसके एग्जाम्पल आपके याद होंगे, है क्या किसी को याद? याद नहीं है तो याद करो एग्जाम्पल। आने वाले 4 तारीख को वो आपको बोलना है, मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना। ठीक है, हाँ यस। वायोला, कॉमेलिना और ऑक्सैलिस, ये किसके एग्जाम्पल है? जिसमें क्लेस्टोगैमस और चैस्मोगैमस फ्लावर है, उसके एग्जाम्पल है। और क्लेस्टोगैमस होने की वजह से उसको एक ही ऑप्शन है सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि मुझे लगा आप गाना बोलेगी क्योंकि इतना प्यार हम करते हैं। तो क्लेस्टोगैमस में क्या है? फ्लावर पूरी तरह से क्लोज है, इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन ही होने वाला है। बराबर है कि नहीं? और कुछ यस, एनी डाउट अदिति? हाँ, चलो आगे चलते हैं। सो व्हाई मेंडल सिलेक्टेड, जल्दबाजी हो रही है क्या? जल्दबाजी हो रही है? व्हाई मेंडल सिलेक्ट, मैडम आपका ध्यान नहीं है। व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट, ये हमें एमसीक्यू में आ सकते हैं ऑप्शंस में। क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एन्युअल प्लांट है, लाइफ स्पैन शॉर्ट है, हम ज्यादा जनरेशंस की स्टडी कर सकते हैं। इजीली सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, जिसकी वजह से हमें क्या मिल सकता है? प्योर लाइन्स मिलेंगे। प्योर लाइन्स का लिटरल मीनिंग है कि हमें नए कैरेक्टर्स कोई भी नहीं मिलेंगे, जो है वही कैरेक्टर्स कंटिन्यू होंगे, जिनका हम इजीली अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन काफी जनरेशंस तक कर सकते हैं। दूसरा, अब ये इजीली सेल्फ पॉलिनेटेड है क्योंकि नेचुरली वो बाइसेक्सुअल है, एक ही समय पे एंड्रोशियम और गाइनोशियम मैच्योर भी हो जाते हैं। बात समझ में आई क्या? एक ही समय पे एंड्रोशियम, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है उसमें कि सेल्फ पॉलिनेशन तभी होगा जब उनका मैच्योरिटी लेवल होगा। अगर एक मैच्योर और दूसरा मैच्योर नहीं है, सपोज दैट प्रोटेंड्री कंडीशन है या प्रोटोगाइनी कंडीशन है, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। बराबर है क्या? व्हाट इज प्रोटेंड्री? व्हाट इज प्रोटेंड्री? व्हाट इज प्रोटेंड्री कंडीशन? यस, एंथर्स मैच्योर फर्स्ट, प्रोटोगाइनी में स्टिग्मा यानी गाइनोशियम मैच्योर होगा।
तो दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड होगा, बराबर है कि नहीं? वो एक अडेप्टेशन है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। क्लियर हुआ क्या? तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से हो रहा है, तो उसी के साथ क्रॉस पॉलिनेशन भी हम आसानी से आर्टिफिशियली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो पैपिलिनेशियस करोला जो है, इसमें जो एंथर है 9+1 का फॉर्मेट है। अब इस 9+1 को हम इजीली फोर्सेप्स से कट कर सकते हैं, जिसे हम इमेस्कुलेशन कहते हैं। इमेस्कुलेशन के बाद बैगिंग, टैगिंग वो सब हो जाएगा, और जो एंथर्स हमने कलेक्ट किए हैं, हमें जिस अदर प्लांट पे वो डस्ट करना है हम उसको डस्ट करेंगे, तो क्रॉस पॉलिनेशन इजीली कर सकते हैं, हो जाएगा। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है कि पी प्लांट सिलेक्ट करने के लिए वो इजीली क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं हम उसमें। बात समझ में आई क्या? इजीली क्रॉस पॉलिनेशन का फायदा ये होगा कि हमें वेरिएशंस क्या हो रहे हैं वो जानने को मिलेगा, क्योंकि उससे तो हेरिडिटी समझ में आ जाएगी, उससे यानी किससे? सेल्फ पॉलिनेशन से। इससे हमें वेरिएशंस भी पता चलेंगे, और इसमें कुछ हेरिडिटी हो रही है कि वो भी ध्यान में आएगा। सो जेनेटिक्स अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। इसका एक और अडेप्टेशन है कि इसके फ्लावर जो है, इमेस्कुलेशन क्यों इजीली हो जाता है? तो फ्लावर्स इसके लार्ज है, फ्लावर्स लार्ज है और 9+1 का फॉर्मूला है, इसलिए आसानी से हम फोर्सेप्स से उसे इमेस्कुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आई क्या? और सबसे आखिरी में इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पी प्लांट है, इस पी प्लांट में जो कैरेक्टर्स हम ऑब्जर्व करने वाले हैं, तो जितने भी कैरेक्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं उसके 2 ट्रेट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें हम कॉन्ट्रास्टिंग पेयर कहेंगे। अब कैरेक्टर क्या है, ट्रेट क्या है, हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही ध्यान में रखो कि वाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट, तो उसको पी प्लांट में जो कैरेक्टर दिखाई दिए, हर कैरेक्टर के लिए कॉन्ट्रास्टिंग पेयर दिखाई दिया। ये एक उसका सिलेक्शन का रीजन है। कॉन्ट्रास्टिंग पेयर क्या है, कैरेक्टर क्या है और ट्रेट क्या है, हम आगे डिस्कस करेंगे। सो दिस आर ऑल द पॉइंट्स फॉर सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। क्लियर हो गया क्या? कुछ डाउट है? अब ये पी प्लांट सेलेक्ट कर लिया मेंडल ने, अब आगे बढ़ते हैं हम इसके मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड मेंडल सक्सेस। आपको ये ध्यान में रखना है, ये मेंडेलीव नहीं है, हाँ ये मेंडेल है। मेंडेलीव केमिस्ट्री में आएगा। मेंडेलीव का क्या है? नहीं पर क्या है, ऑक्टेट या ट्रायड? ट्रायड्स है ना, बराबर है ना। डोबेराइनर्स, इसलिए मैं पूछ रहा हूं मेंडेलीव का क्या है? लॉ है, और ये डोबेराइनर का ट्रायड था, बराबर है ना। तो मेंडेलीव अलग है और मेंडेल अलग है, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ बिटवीन मेंडेल। नहीं, काफी टाइम ऐसे होता है कि एग्जाम में स्टूडेंट्स मेंडेल और मेंडेलिव में कंफ्यूजन कर लेते हैं, और हो सकता है बायोलॉजी में भी केमिस्ट्री घुस जाए। आप अगर नहीं बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, या फिर उधर जाके पेपर सॉल्व करो, डिस्कस भी कर लो फिर उधर जाके। टेक्स्ट बुक निकालो, टेक्स्ट बुक में से डिस्कस करो। चलो आगे ध्यान देते हैं। गिव द रीजंस बिहाइंड मेंडल सक्सेस ऑन सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इसमें सक्सेसफुल होने का? सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये सारे हमने सिलेक्शन के रीजंस देखे। सक्सेस होने का मेन रीजन क्या है कि जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए तो उसने एट ए टाइम एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे ध्यान दिया। अब हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी में स्किन कलर है, आंखों का कलर है, हेयर्स का कलर है, हमारी हाइट है, बराबर है कि नहीं? ये अलग अलग कैरेक्टर है। पर अगर हमें एक्सपेरिमेंट करना है कुछ, तो एक साथ हम सारे कैरेक्टर ऑब्जर्व करते समय एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हो सकता है उसमें कंफ्यूजन हो और रीडिंग बराबर ना है। तो मेंडल के सक्सेस का सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि एक तो उसने पी प्लांट सिलेक्ट करी जिसमें सारे फेवरेबल कैरेक्टर्स थे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का क्या था कि ही स्टडीड ओनली वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एट ए टाइम, वन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट एट ए टाइम। उसके बाद वन के बाद फिर उसने
2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, उसके बाद 3 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 4, 5, 6 एंड 7, इस तरह से, क्योंकि उसने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सिलेक्ट किए थे स्टडी के लिए। तो उसने स्टडी करते समय क्या किया, एट ए टाइम पहले एक पेयर ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया। वो तो प्लांट है, उसमें सारे पेयर्स है ना, वो तो दिख रहे हैं ना, फ्लावर कलर दिखेगा, फ्लावर पोजीशन दिखेगा, सीड कलर, सीड हैबिट, पॉड शेप, पॉड हैबिट और हाइट, ये सारे कैरेक्टर्स दिखाई देंगे, बराबर है कि नहीं। पर उसने ऑब्जर्वेशन एट ए टाइम सिर्फ काफी जनरेशन तक एक ही कैरेक्टर का किया, दूसरे कैरेक्टर की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि यहां पे रेड कलर कहां पे दिख रहा है, तो आपका ध्यान सिर्फ क्या ढूंढने में जाएगा, आप भले आपको दिख रहे सारे कलर दिख रहे हैं, पर हमारा ध्यान सिर्फ किस पे है, रेड कलर पे, तो हमें सिर्फ वही दिखाई देगा कि नहीं। उसी तरह से व्हाट ही डिड, ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट बाय कंसिडरिंग ओनली 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। क्लियर हो गया क्या, 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का स्टडी करना। उसके बाद फिर एक बार 1 पेयर का स्टडी हो गया, उसके बाद फिर 2 पेयर लिए उसने, उसका काफी जनरेशन तक ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद 3 पेयर को ध्यान में लिया, उसके बाद 4 पेयर को ध्यान में लिया। इसका एग्जांपल हम कैसे देख सकते हैं, पहले इसमें सपोज दैट उसने हाइट का स्टडी किया, तो काफी जनरेशन तक सिर्फ किसको देखा, हाइट। फिर सेकंड एक बार सारे कैरेक्टर, पहले हाइट देखा, फिर सीड कलर, सीड शेप, हर सिंगल कैरेक्टर को उसने स्टडी कर लिया, और किस तरह से प्रोजीनी पैदा हो रहे हैं उसका भी उसने स्टडी कर लिया। बात समझ रहे हैं क्या। उसके बाद क्या किया उसने, एट ए टाइम सपोज दैट हाइट ले लिया, हाइट के साथ सीड कलर ले लिया, 2 कैरेक्टर एट ए टाइम स्टडी किए, उसके बाद 3 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर, इस तरह से उसने स्टडी किया, और ये स्टडी काफी जनरेशंस तक किया। तो ये इजीली पॉसिबल क्यों हो गया, ये काफी जनरेशंस तक, पहले एक कैरेक्टर के लिए उसने काफी जनरेशंस देखे, फिर 2 कैरेक्टर के लिए दिए, ऐसा पॉसिबल क्यों हुआ। इतने कैरेक्टर्स जल्दी जल्दी स्टडी कैसे कर लिए उसने, लाइफ स्पैन बहुत कम है, इसलिए उसने काफी जनरेशंस तक इस तरह से अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। तो ये उसका सक्सेस का पहला रीजन था। एक तो सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट जिसमें सारे फेवरेबल कैरेक्टर्स है, दूसरा रीजन क्या, एट ए टाइम ओनली 1 कैरेक्टर, देन 2, देन 3, इस तरह से, बराबर। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इसमें कि पी प्लांट का सिलेक्शन और एट ए टाइम कैरेक्टर के सिलेक्शन के बाद की बात, आपको बात समझ रही है कि कुछ प्रॉब्लम है। मेंडल ने क्या किया, जितने भी एक्सपेरिमेंट किए, जितने भी प्रोजीनीज पैदा हुए, बात समझ रहे हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट किए, जितने भी नए जनरेशंस आए, उन हर जनरेशंस को उसने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया, और उसने स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई किया, जो उस वक्त बायोलॉजी में मैथमेटिक्स यूज करने के लिए सबसे पहला कोई सिग्नल होगा, क्योंकि उसके पहले कभी भी बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का किसी ने भी यूज नहीं किया हुआ था। सो व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड सक्सेस ऑफ मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, he was the first to use statistical and mathematical methods for the recording of biological experiments, और वो रिकॉर्ड सारे मेंटेन होने की वजह से एक्यूरेसी रही कि एग्जैक्टली कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, किस तरह से कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है क्या। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट वर्ड हम यूज करेंगे अभी कि सक्सेस का एक रीजन ये भी है कि जो भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उसने सिलेक्ट किए थे उसमें लिंकेज नहीं था। अब हम लिंकेज क्या है हम इस चैप्टर के एंडिंग में डिस्कस करने वाले हैं, अभी फिलहाल हम लिंकेज में नहीं जाएंगे। पर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में लिंकेज नहीं होना ये भी उसके सक्सेस का एक इंपॉर्टेंट रीजन है। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर हो रहा है कि कुछ डाउट है। अरे भाई कुछ डाउट है क्या, क्लियर हो गया। Why Mendel selected pea plant and what are the reasons behind success of hybridization experiment, क्लियर हो गया क्या। अब आगे क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन कौन से सिलेक्ट करें। अब सबसे पहले मैं तुम्हें कैरेक्टर और ट्रेट ये समझा देता हूं। कैरेक्टर क्या है, जैसे जो दिखने वाला प्रॉपर्टी है, जैसे हाइट एक हमारा कैरेक्टर है, पर क्या सब लड़कों की हाइट सेम है क्या, कुछ टॉल है, कुछ बौने हैं, कुछ इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं हमें। ये इंटरमीडिएट होना यानी लिंकेज है।
उसमें क्या था, पी प्लांट में एक तो टॉल था या तो शॉर्ट था, डॉर्फ था, बीच में वाला नहीं था। ये उसके सक्सेस का मेन रीजन था। अगर बीच में वाला आ जाता तो उसको एक्सपेरिमेंट का रिकॉर्ड कंक्लूड करने के लिए परेशानी हो जाती। वो क्या परेशानी होती है हम आगे डिस्कस करेंगे। पर हमें अभी सपोज दैट हम कैरेक्टर्स देख रहे हैं, जैसे हेयर कलर, ये हमारा एक कैरेक्टर है। सबके हेयर्स के कलर सेम होते हैं क्या? किसी का ब्राउन हो सकता है, किसी का ब्लैक हो सकता है, किसी का व्हाइट हो सकता है। हम 3 ले लेते हैं फिलहाल, या ग्रे हो सकता है, ब्लैक, ग्रे एंड ब्राउन। फिलहाल ऐसे 3 कलर शेड हम ले लेते हैं। तो ये ब्राउन वाला क्या हो गया? ये ट्रेट हो गया। कैरेक्टर एक ही है क्या? हेयर कलर, और उसमें अलग अलग शेड दिखाई दे रहे हैं ना, तो वो क्या, हम उसे क्या बोलेंगे? ट्रेट्स। ट्रेट्स आर द वेरिएशंस ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ट्रेट्स आर द वेरिएशंस ऑफ द कैरेक्टर। जो कैरेक्टर हम ले रहे हैं, कौन सा कैरेक्टर लिया हमने? हेयर कलर। अब हेयर कलर हमने कैरेक्टर लेने के बाद उसमें अगर ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है तो उसे हम एक ट्रेड बोलेंगे। बात समझ रहे? अरे समझ रहे क्या? ब्लैक कलर क्या हो गया? ट्रेड। ग्रे कलर क्या हो गया? ट्रेड। हालांकि ये ट्रेड्स जो है ये कौन से कैरेक्टर के ट्रेड है? हेयर कलर के। तो कैरेक्टर ये पूरी मेन प्रॉपर्टी हो गई, और उसमें जो वेरिएशंस दिखाई दे रहे हैं उसको हम ट्रेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे हाइट, हाइट एक कैरेक्टर है, और टॉल एक ट्रेट हो गया। डॉर्फ, बात समझ में आई? सीड कलर, सपोज दैट एक येलो है एक ग्रीन है, तो वो क्या हो गया? ट्रेट। ट्रेस नहीं, ट्रेट, TRAIT, ट्रेट। क्लियर हो रहा है क्या? सो कंसेप्ट में कोई परेशानी? कैरेक्टर समझ रहे हैं, ट्रेट समझ रहे हैं। अब हम और इसको अच्छी तरह से आगे डिटेल में डिफाइन करेंगे। अभी फिलहाल हमें क्या ध्यान में रखना है, अगला पॉइंट, कि कौन कौन से कैरेक्टर उसने सिलेक्ट किए। तो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। 7 पेयर। कॉन्ट्रास्टिंग क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं? टॉल, डार्क। हम कपड़े पहनते समय यूज करते हैं ना, डार्क और लाइट का कॉन्ट्रास्ट यूज करते कि नहीं? कॉन्ट्रास्ट यानी मोस्टली अपोजिट। एक टॉल है तो एक शॉर्ट है, उसको हम क्या यूज कर रहे हैं? डॉर्फ, DWARF, डॉर्फ। समझ रहे पॉइंट्स? सो कौन से 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उसने सिलेक्ट किए? सीड शेप, सीड कलर, सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, हो गए 4। फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर 6, और हाइट। बात समझ में आई? सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, और हाइट। लर्न करो मन में। सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, और हाइट। बात समझ में आई क्या? ये कुछ प्रॉब्लम है? सीड शेप, सीड शेप में क्या है? सीड शेप पहला कैरेक्टर सपोज दैट मान लेते हैं। उसके बाद सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, एंड क्या? हाइट। अब हाइट में हमने क्या कहा? टॉल एंड डॉर्फ। ये दोनों क्या है? ट्रेट्स। और ये क्या है? मेन कैरेक्टर। बात समझ में? फ्लावर पोजीशन एक्सिलरी और एक्सियल एंड टर्मिनल, कलर वायोलेट एंड वाइट, सीड शेप, सीड शेप राउंड रिंकल्ड। ध्यान देना अच्छी तरह से। सीड कलर येलो ग्रीन, पॉड शेप इनफ्लैटेड, इनफ्लैटेड या फुल, यानी जिसके लाइनिंग स्मूथ है, और दूसरा कैसा है? कॉन्स्ट्रिक्टेड। थोड़ा अच्छी तरह से लिख देता हूं। अब इसमें ये जो कैरेक्टर्स हम दिखाई दे रहे हैं, एक ट्रेट T1 और इधर वाला T2, हालांकि ये सिंबल नहीं है, ये सिर्फ हमें समझने के लिए मैंने लिया T1 T2। दिस आर नॉट द सिंबल फॉर ट्रेट्स। अब सीड शेप कैसा कहा मैंने? राउंड। राउंड को हम बायोलॉजिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल RR, इस ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। फिर रिंकल्ड, रिंकल्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल RR से। ये क्या है हम बाद में देखेंगे।
येलो कलर वाई वाई और ग्रीन कलर स्मॉल वाई वाई. Pod shape इनफ्लैटेड इसको आप आई से रिप्रेजेंट करो, या इसको फुल भी बोलते. फुल यानी कंप्लीट, फुल यानी मूर्ख नहीं, मूर्ख पॉड. सो और दूसरा कौन सा कहा मैंने, कॉन्स्ट्रिक्टेड स्मॉल आई. इस तरह से अलग अलग किताबों में हो सकता है, नोटेशन कुछ अलग भी हो. कलर पॉड शेप कौन सा है, ग्रीन. हाँ, ग्रीन को हम कैपिटल जी ले लेते हैं, और येलो स्मॉल जी. बात समझ रहे क्या. फ्लावर पोजीशन एक्सिलरी और एक्शियल पोजीशन को आप कैपिटल ए मान लो. टर्मिनल स्मॉल ए. ये कंसेप्ट है, अच्छी तरह से ध्यान में रखना है. कलर वायोलेट कैपिटल वी ले लो, और कौन सा व्हाइट, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल वी से. हाइट टॉल कैपिटल टी. डॉर्फ स्मॉल टी. इस तरह से 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल ने सिलेक्ट किए. कोई परेशानी, कुछ डाउट है क्या इसमें डाउट का कुछ लेना देना नहीं है. कौन से पेयर सिलेक्ट किए, कौन से कैरेक्टर हो सकता है उसमें और काफी हो. जैसे हम एट ए टाइम हमें सिर्फ हमारा स्किन कलर स्टडी करना है, हमारा जो नोज है उसका शेप भी एक कैरेक्टर है ना, पर सब में सेम होता है क्या, तो नोज का भी ट्रेट होगा कि नहीं. तो बॉडी में तो ऐसे काफी कैरेक्टर्स है, तो हमें कौन से स्टडी करने हैं वो हमने सिलेक्ट कर लिए. वैसे मेंडल ने इसमें 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडी कर लिए. बात समझ में आई क्या, अरे समझे क्या. यस, सीड कलर येलो है, उसके बाद ग्रीन है. ये इधर क्यों लिखे हैं, ये इधर क्यों लिखे हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे. फिलहाल यहां तक समझ गए क्या. इधर वाले अलग सेंस दिखाते हैं, उधर वाले अलग सेंस दिखाएंगे. जो हमने स्मॉल लेटर से लिखाया है उसका सेंस क्या है हम आगे स्टडी करेंगे. यहां तक कोई परेशानी. अब मेंडल ने पी प्लांट सिलेक्ट कर लिए. पी प्लांट का एक्सपेरिमेंट क्यों सक्सेसफुल हुआ वो भी हमने स्टडी कर लिया. उसके बाद कैरेक्टर्स कौन से सिलेक्ट किए वो भी हमने देख लिए. अब मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए एग्जैक्टली उसका नेचर क्या था, यानी एक्सपेरिमेंट की एक गाइडलाइन क्या है वो हम अब देख लेंगे कि एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट में उसने किया क्या. ध्यान दो अच्छी तरह से. उसने क्या किया मेंडल ने, ही सिलेक्टेड pea plant and considered at a time only one pair of contrasting character for the observation, and he used self as well as cross pollination for the observation. self pollination से pure lines मिला है, cross pollination से जो मिलेगा उसे hybrids बोलेंगे. देखो ध्यान दो अच्छी तरह से. सेल्फ पॉलिनेशन से जो बच्चे पैदा हुए हैं वो क्या है, प्योर लाइन्स. टॉपिक ज्यादा सीरियस हो रहा है क्या, समझ रहा है ना, यूट्यूब के लिए अच्छा है ना. सेल्फ पॉलिनेशन से जो बच्चे पैदा हुए हैं वो प्योर लाइन्स है, उन्हें हम होमोजाइगस बोलते हैं. बायोलॉजिकली क्या बोलेंगे, होमोजाइगस. हम इसकी अच्छी टर्मिनोलॉजी बाद में देखेंगे कि एग्जैक्टली होमोजाइगस है नहीं क्या. फिलहाल हम सिर्फ इतना ध्यान में रखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन से हमें कौन से प्रोजीनीज मिले, प्योर लाइंस. उसके बाद हमने इन प्योर लाइंस का क्रॉस पॉलिनेशन किया. हमने यानी किसने, मेंडल ने प्योर लाइंस का क्रॉस पॉलिनेशन करवाया. क्रॉस पॉलिनेशन से जो बच्चे पैदा हुए उन्हें हमने कहा हाइब्रिड्स. देखो ध्यान दो अच्छी तरह से, मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताता हूँ. ये क्लियर हो गया क्या, ये क्लियर हो गया क्या. सबसे पहले क्या किया उसने, ही ऑब्टेन्ड प्योर. पहले तो पी प्लांट सिलेक्ट कर लिया, बराबर है क्या, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट. एट ए टाइम उसने क्या किया, ओनली 1 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उसने स्टडी किया. तीसरा उसने क्या किया,
जो पी प्लांट उसे दिखाई दिए उसको सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। वो तो नेचुरली होगा, पर उसने ऑब्जर्वेशन करते समय सेल्फ पॉलिनेशन से जो प्रोजिनी पैदा हुई है, प्रोजिनी यानी ऑफस्प्रिंग, ये जो सेल्फ पॉलिनेशन से बच्चे पैदा हुए हैं, ये 3-4 जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन से बच्चे उसने पैदा करवाए और इनको उसने एक्सपेरिमेंट में इंक्लूड किया। ये कौन से थे? ये जो प्रोजिनी थे कौन से थे? प्योर लाइन्स थे। बात समझना है? यानी जो एक्सपेरिमेंट में उसने पेरेंट सिलेक्ट किए वो सारे कौन से होने चाहिए? प्योर लाइन्स। सो जो प्योर लाइन्स थे, प्योर लाइन्स में उसने मेल सिलेक्ट किया और एक फीमेल सिलेक्ट किया। ध्यान देना अच्छी तरह से। प्योर लाइन्स में एक मेल सिलेक्ट किया, एक फीमेल सिलेक्ट किया। अब इसका उसने क्रॉसिंग करवाया। क्रॉसिंग कैसे करवाया? क्योंकि हमने पहले ही देखा पी प्लांट ये इजीली सेल्फ पॉलिनेटेड है, तो इजीली क्रॉस पॉलिनेशन भी हम आर्टिफिशियल करवा सकते हैं। लार्ज फ्लावर होने की वजह से, एंथर्स 9+1 होने की वजह से क्या हो रहा है कि इमैस्कुलेशन आसान हो जाएगा। बैगिंग, टैगिंग, डस्टिंग, ये सारी प्रोसेस आसान हो जाने की वजह से उनका क्रॉस पॉलिनेशन उसने करवाया। तो एक मेल प्योर लाइन सिलेक्ट किया और एक फीमेल प्योर लाइन सिलेक्ट किया। इन प्योर लाइन्स को हम होमोजाइगस भी कहते हैं। होमोजाइगस पेरेंट। ये पेरेंट कैसे है? होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब है कि सपोज दैट एट ए टाइम कौन सा कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर देखने हैं? सपोज दैट हम हाइट ले रहे हैं अभी, लेट हमने कौन सा कैरेक्टर ऑब्जर्व करना है अभी कुछ जनरेशन तक? हाइट में 2 ट्रेट है, एक टॉल है, एक डॉर्फ है। तो उसने मेल और फीमेल सिलेक्ट करते समय क्या किया? एक टॉल सिलेक्ट किया और एक डॉर्फ सिलेक्ट किया। और ये कैसे है उनके कैरेक्टर्स के लिए? तो प्योर टॉल को हम बायोलॉजिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और प्योर डॉर्फ को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी बात समझ रहे हैं थोड़ी थोड़ी? एट ए टाइम मेंडल स्टडीड ओनली 1 कैरेक्टर, उसके बाद फिर पूरे कैरेक्टर का स्टडी हो गया, फिर एट ए टाइम 2 कैरेक्टर्स, फिर 3 कैरेक्टर्स, इस तरह से। और उसने क्या किया? ही अप्लाइड मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल दोज एक्सपेरिमेंट्स। बराबर है क्या? सबसे पहले पी प्लांट का सिलेक्शन, उसका सेल्फिंग करवाया और क्या मिला लिए? प्योर लाइन्स मिला है। प्योर लाइन्स उनके कैरेक्टर के लिए प्योर है, इसलिए हम उनको क्या बोल रहे हैं? होमोजाइगस बोल रहे हैं। अब उनमें से उसने मेल और फीमेल पेरेंट सिलेक्ट कर लिए जिनका क्रॉसिंग करवाना है, जिनके बच्चों का ऑब्जर्वेशन करवाना है। तो मेल पेरेंट सिलेक्ट किया और फीमेल पेरेंट सिलेक्ट किया। ध्यान देना अच्छी तरह से। अब एक मेल पेरेंट जो है वो सिलेक्ट करते समय जो कैरेक्टर हम स्टडी कर रहे हैं उसको हमने हाइट कंसीडर कर लिया। यहाँ पे हम सीड कलर भी स्टडी कर सकते हैं, सीड शेप भी स्टडी कर सकते हैं, फ्लावर शेप, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, हम ये सारे स्टडी कर सकते हैं। हमने हाइट स्टडी किया मान लिया। अब हाइट स्टडी करते समय हमें सबसे पहले प्योर लाइन पेरेंट सिलेक्ट करने हैं। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसकी गाइडलाइन क्या है? सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइन पेरेंट्स। प्योर लाइन का मतलब है होमोजाइगस पेरेंट। बात समझ में आई क्या? ये जो होमोजाइगस पेरेंट है उसमें उसने एक टॉल सिलेक्ट किया और एक डॉर्फ सिलेक्ट किया। ध्यान देना अच्छी तरह से। तो टॉल को हम प्योर टॉल, ये प्योर टॉल है, ध्यान देना, प्योर टॉल, एंड दिस इज प्योर डॉर्फ। इनका उसने आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। अब जब इनका क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो इसका मतलब ये जो गैमेट प्रोड्यूस करेगा टॉल वाला, ये होगा इस तरह से। ये गैमेट है, मेल गैमेट, जिसमें कौन सा कैरेक्टर स्टडी है? टॉल वाला कैरेक्टर। हेप्लॉइड, दिस इज डिप्लॉइड। इसलिए हमने कैरेक्टर को कैपिटल टी स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर दिया। कैरेक्टर के ट्रेट को, कैरेक्टर के ट्रेट को अगर टॉल है तो कैपिटल टी, डॉर्फ है तो स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ऑर्गेनिज्म को डिप्लॉइड रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका जो हेप्लॉइड गैमेट है वो कैपिटल टी और इसका गैमेट क्या आएगा? यहाँ पे एक्चुअली 2 गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी, पर दोनों सेम टाइप के, इसलिए हमने सिर्फ कितनी बार लिखा? 1 बार लिख लिया। बात समझ में आई कि नहीं? ये गैमेट बन गए। क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, गैमेट मिले। ये गैमेट उसको दिखने वाले नहीं है, ये हम बायोलॉजिकली लिख रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? अब इनका क्रॉस पॉलिनेशन से उसको एक बच्चा मिला। जो बच्चा मिला उसको वो टॉल दिखा।
उसने ऑब्जर्वेशन करे, खेतों में उसने क्या किया, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन करवाया मेल और फीमेल के बीच में। बात समझ रहे? जो मेल प्लांट सिलेक्ट करे, पहली बार उसने सारे टॉल सिलेक्ट कर लिए, फीमेल प्लांट सिलेक्ट करे वो सारे डॉर्फ सिलेक्ट कर लिए, और उनसे जो बच्चे पैदा होंगे उनका जो उसने ऑब्जर्वेशन करा, तो सारे के सारे बच्चे कैसे दिखाई दिए, टॉल। तो लॉजिकली उसको ऐसा ध्यान में आना चाहिए कि ये टॉल है नहीं यही है, पर उसने बाद में जो एक्सपेरिमेंट करे उससे उसके समझ में आया कि ये टॉल, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो बच्चा पैदा हुआ है इसमें एक कंट्रीब्यूशन इधर का है तो दूसरा कंट्रीब्यूशन मदर का है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये एक्चुअली टॉल नहीं होना चाहिए था, ये इंटरमीडिएट होना चाहिए था, एक टॉल एक डॉर्फ और उसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए था कि नहीं, पर ऐसा नहीं है। ये दोनों में से, ये जो दोनों ट्रेट है उनमें से एक ट्रेट उसे पहले बच्चे में दिखाई दिया। ये जो पहला बच्चा है इसे हम बोलेंगे F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F1 जनरेशन। यानी जो मेन पेरेंट हमने सिलेक्ट किए प्योर लाइंस, और सिलेक्ट करते समय हम हाउ मेनी कैरेक्टर ऑब्जर्व करने वाले हैं, 1। हमने हाइट ले लिया, हाइट के दो ट्रेट है हमारे पास, एक टॉल है डॉर्फ है। टॉल वाले पेरेंट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, डॉर्फ वाले को इस तरह से। प्योर टॉल प्योर डॉर्फ का जो गैमेट बनेगा वो इस तरह से आएगा, और इन दोनों के क्रॉसिंग से जो प्रोजीनी हमें मिली वो सारी दिखने में कैसी है, टॉल है। इसका मतलब ये जो प्रोजीनी है इसमें इन दोनों पेरेंट में से एक ही पेरेंट का क्या ट्रेट आया है कि नहीं? जो ट्रेट F1 जनरेशन में दिखाई देगा उस ट्रेट को हम कहेंगे डोमिनेंट ट्रेट। इसका मतलब ऐसा कि इस ट्रेट ने अपना अस्तित्व रखा हुआ है, डोमिनेंसी। बात समझ में है कि नहीं? डोमिनेंसी हम वर्ड इसलिए यूज रख रहे हैं कि हमारा अस्तित्व दिखाई दे रहा है। टॉल और डॉर्फ के क्रॉसिंग से जो बच्चा पैदा हुआ वो दिखने में कैसा है, इसका मतलब ऐसा हुआ कि डॉर्फ पेरेंट या तो अपना कंट्रीब्यूशन दे नहीं रहा है, या तो डॉर्फ का कंट्रीब्यूशन है पर टॉल ने उसको दबा दिया है। बात समझ में आई क्या? व्हाट इज द कंक्लूजन बिहाइंड दिस? दोनों पेरेंट्स का कैरेक्टर यहाँ पे, सपोज दैट हम कलर लेते हैं कुछ भी, एक ब्लैक कलर ले लेते पेरेंट्स का और एक व्हाइट कलर ले लेते, तो बच्चा ग्रे पैदा होना चाहिए लॉजिकली। एक ब्लैक और व्हाइट है तो बच्चा कैसे पैदा होना चाहिए? लॉजिकली ग्रे पैदा होना चाहिए ना। पर सपोज दैट, इधर ध्यान दो, पर सपोज दैट ब्लैक और व्हाइट पेरेंट का बच्चा अगर ब्लैक पैदा हुआ तो इसका मतलब ब्लैक क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि इसका मतलब उस बच्चे में व्हाइट पेरेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, पर ऐसा है क्या? कंट्रीब्यूशन तो है। तो दूसरा कंक्लूजन ये है कि ब्लैक कैरेक्टर ने, ब्लैक ट्रेट ने व्हाइट ट्रेट को क्या कर दिया है? सप्रेस कर दिया है। तो जो सप्रेस होगा व्हाइट, उसे रेसेसिव बोलेंगे। अब यहां पे कौन सप्रेस हो गया? तो ये हो गया हमारे लिए रेसेसिव कैरेक्टर। रेसेसिव कैरेक्टर इसका मतलब सप्रेस हो गया, और ये हो गया क्या? डोमिनेंट। तो हम किसको डोमिनेंट बोलेंगे? ध्यान देना अभी अच्छी तरह से। डोमिनेंट ट्रेट अगर हमें किसी ने पूछ लिया आपको लेबोरेटरी में, प्रैक्टिकल एग्जाम में, कि व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट ट्रेट? द ट्रेट विच इज ऑब्जर्व्ड इन पहली जनरेशन में जो ट्रेट दिखाई देगा दोनों में से, उसे हम कहेंगे डोमिनेंट ट्रेट, और जो नहीं दिखाई देगा उसे हम कहेंगे रेसेसिव ट्रेट। बात समझ में आई क्या? डोमिनेंट ट्रेट 10th स्टैंडर्ड में भी आपको ये टॉपिक होंगे, पर शायद उस टाइम पूरी तरह से आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आया होगा। जो फर्स्ट जनरेशन में, देखो सबसे पहले हम ये पेरेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, ये होने चाहिए प्योर लाइंस, यानी होमोजाइगस होने चाहिए। होमोजाइगस का मतलब ये दोनों सेम। इसका मतलब क्या है, हम और आगे डिटेल में देखेंगे। ये दोनों सेम होने चाहिए, इसको हम होमोजाइगस बोलेंगे। इनका गैमेट बन गया हैप्लॉइड। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो जाइगोट बना और जो प्लांट बना वो इस तरह से आया, टॉल दिख रहा है। पर इंटरनली अगर हम सोचेंगे तो वो टॉल कैपिटल टी नहीं हो सकता, उसमें एक इधर का और एक इधर का आना चाहिए। ये प्योर होमोजाइगस दिख रहा है क्या? देखो दोनों सेम है क्या? दोनों सेम है क्या? तो ये जो F1 जनरेशन है इसे हम F1 हाइब्रिड कहते हैं, क्योंकि ये सेल्फिंग से नहीं आया है, ये
क्रॉसिंग से आया है, तो क्रॉसिंग से जो बच्चा पैदा होगा उसे हम क्या कहेंगे, F1 हाइब्रिड। ये हाइब्रिड प्रोजीनी है, इसलिए इसको हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कहा गया है। बात समझ में आई क्या? सेल्फिंग से जो बच्चे पैदा हो गए, सपोज दैट हमने एक प्लांट ले ली, उसी प्लांट का उसी से हमने सेल्फिंग करवा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया, तो जो बच्चा पैदा होगा उसमें कुछ वेरिएशन दिखाई देगा क्या? नहीं ना, उसमें कुछ भी वेरिएशन नहीं रहेगा। तो ये जो बच्चा है ये प्योर लाइन है, ये हाइब्रिड नहीं है। पर दो अलग अलग प्लांट्स का क्रॉसिंग करवाने के बाद हमें जो बच्चा मिलेगा वो क्या है? और हाइब्रिड में आपको दिख रहा है क्या वो होमोजाइगस है क्या? हाइब्रिड है हेटेरोजाइगस। बात समझ में आई? हाइब्रिड क्या है? हेटेरोजाइगस प्रोजेनी। और फर्स्ट जनरेशन यानी पहला बच्चा जो इनका पैदा हुआ है, इसमें हमें जो कैरेक्टर नहीं, जो ट्रेट दिखाई देगा। कैरेक्टर तो हम एक ही स्टडी कर रहे हैं। पहले जनरेशन में दोनों में से जो ट्रेट, ये है कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर। ये कॉन्ट्रास्टिंग पेयर हो गया ना कैरेक्टर का, तो ये दोनों ट्रेट में से हमें जो ट्रेट दिखाई देगा उसे हम डोमिनेंट बोलेंगे। जो दब जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, उसे बोलेंगे रेसेस। यहां तक क्लियर हो गया? अब मेंडल यहां पे नहीं रुका, उसने फर्स्ट जनरेशन में टॉल देखा तो उसको क्वेश्चन अराइज हुआ कि इसका मतलब कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक पेरेंट का है, दूसरे पेरेंट ने कंट्रीब्यूट नहीं किया है। तो वो ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढना चाहता था कि सचमुच दूसरे पेरेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि इसमें तो दिख रहा है टॉल, तो दूसरे पेरेंट का कंट्रीब्यूशन है या नहीं, ये चेक करने के लिए मेंडल ने जो F1 प्रोजेनी थी उसका ही उससे सेल्फिंग करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन। ये भी बाइसेक्सुअल ही है ना? अरे ये पी प्लांट है, जो बच्चा पैदा होगा वो भी बाइसेक्सुअल होगा। अब उसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। पहला बच्चा किससे मिला? क्रॉसिंग से, यानी क्रॉस पॉलिनेशन से मिला। जो पहला बच्चा मिला उसका मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, उसे हम सेल्फिंग कहेंगे। क्यों करवाया? उसे ये मालूम करना था कि वो जो F1 टॉल दिखाई दे रहा है, अगर वो टॉल है तो क्या दूसरा जो पेरेंट हम कंसिडर कर रहे हैं डॉर्फ, उसका कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है क्या? और अगर है तो क्या आने वाली जनरेशन्स में वो दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? बात समझ में आई कि नहीं? अगर आने वाली जनरेशन में, चाहे दूसरी जनरेशन चाहे तीसरी जनरेशन, आने वाले जनरेशन में अगर हमें कोई डॉर्फ मिल गया सेल्फिंग से, सेल्फिंग का मतलब है कि दूसरा कोई अभी हम ऐड नहीं करेंगे बाहर से, क्रॉस नहीं। सेल्फिंग का मतलब है ये जो बच्चे पैदा हुए हैं उन्हीं में टाका बिठा देने का, उनका ही सेल्फ पॉलिनेशन। तो आने वाले जनरेशन्स में अगर हमें कोई डॉर्फ मिल गया तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें भी डॉर्फ का कैरेक्टर था, पर वो सप्रेस था, उसने खुद को एक्सप्रेस नहीं किया था, पर इसमें भी डॉर्फ का कंट्रीब्यूशन है। हम जेनेटिक्स समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, हाउ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, हाउ कैरेक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस टेक्स प्लेस। अरे भाई बात समझ रहे हैं क्या? ये जो जेनेटिक्स यूनिट है ना, इसमें मेंडल का ये जो पहले 5-6 पेजेस है सिलेबस के, ये समझने बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार ये समझ गया तो चैप्टर पूरा क्लियर। यहां तक कोई तकलीफ है, कोई परेशानी? अब सिक्वेंशियली जाते हैं। सबसे पहले मेंडल ने पी प्लांट सिलेक्ट किया, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। क्यों सिलेक्ट किया? सक्सेस क्यों आगे हमने देख लिया। उसने जब एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो जो पेरेंट सिलेक्ट किए वो सारे प्योर लाइन्स थे। प्योर लाइन पेरेंट जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन से मिलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन से मिले। एक प्लांट लिया, उसका सेल्फ पॉलिनेशन 3-4 जनरेशन तक 3-4 प्रोजेनी लिए, तो आने वाली लास्ट प्रोजेनी काफी अच्छी तरह से उसी कैरेक्टर वाली प्योर लाइन रहेगी। और वो सारे कैसे रहेंगे? होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब है प्योर फॉर द ट्रेट। अब आप बोलोगे सर प्योर फॉर द ट्रेट का मतलब क्या है? कि अगर हम एक कैरेक्टर ले रहे हैं हाइट एक कैपिटल टी वाला है, हाइट का कैरेक्टर हमने कैपिटल टी से दिखाया है। बाहर तो हमें हाइट दिख रही, पर अंदर उसके जीन्स है ना। हालांकि उस वक्त जीन्स का कोई विषय नहीं था, पर हमने कैपिटल टी से हाइट कैरेक्टर को दिखा दिया। अब कैपिटल टी क्या एक ही ट्रेट है क्या हाइट में? स्मॉल टी भी तो है ना। बात समझ में आई कि नहीं?
तो प्योर फॉर द ट्रेड का मतलब है कि कैपिटल टी के साथ अगर कैपिटल टी जुड़ेगा तो उसे हम प्योर फॉर द ट्रेड बोलेंगे, स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी जुड़ जाएगा तो हम प्योर फॉर द ट्रेड बोलेंगे, यानी होमोजाइगस। पर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी अगर जुड़ा तो मिक्स हो गया ना, वो प्योर कहाँ है, तो उसे हेटेरोजाइगस बोलेंगे, दैट इज नॉट प्योर। कंसेप्ट समझ में आई?